can be a point of reference, not a place of residence. You can't live in the past. You can make a reference from it, but that can't be your home. हमारा तो कभी कभार हम अपने फिटनेस ट्रेनर को बोलते थे कि आज कपड़े बहुत धुले, आज जिम सेशन हो गया. मतलब just putting into context कि आज जिम सेशन हो गया क्योंकि आज हम सब ने अपने कपड़े धोए, सब मजे से बैठे हैं अपने कपड़े धो रहे हैं. Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Mariam Yusuf and I've been your host for a while for all the podcasts of Dental News Pakistan. But today is extra special. How often do we have a guest who is a dentist, who is also a former captain of Pakistan's national women's cricket team, who is also a very excellent cricket commentator and on top of all is a mother and has a personal life and is running clinic, is running her job at the PCB, is wearing so many hats at the moment. It's not very often we have guests like these, but we have one today. Dr. Uruj Mumtaz, thank you so much for taking out the time for this. I am looking forward to this conversation so much. Thank you Dr. so Mariam, much. my absolute pleasure, and thank you very much for having me. Also, thank you for that kind introduction. That was very nice, very nice. Absolutely. अच्छा तो डॉक्टर अरूज आपसे बहुत सारे डायमेंशंस में बात की जा सकती है. ट्रस्ट मी, दिस वाज वन स्क्रिप्ट जो मैं जब बना रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि शुड आई टॉक टू हर अबाउट डेंटिस्ट्री फर्स्ट, शुड आई टॉक टू हर अबाउट क्रिकेट फर्स्ट, शुड आई लेट्स जस्ट बिगिन विद क्रिकेट. So I want to understand कि by the way I've done a lot of homework on you, so please don't consider me as a creep who was stalking you because well I was one until last night. Done. So I read somewhere कि cricket का interest आप में generate हुआ when you used to go to Gymkhana as a kid with your father and he used to play there. He's a dentist as well. And he used to play there with his friends and then you joined the under 10 and under 12 team of the boys cricket team at Gymkhana and then eventually you became the captain of the under 19 boys team. So I want to understand कि खेल कूद तक तो you got interested in Gymkhana, sure. When did you decide to professionally take up cricket? So I'll take you one more step before where my journey in your book has started. One more step before that was, and I still remember this very clearly, and for a lot of cricket fans who are my age and have seen it, the 1992 World Cup, where Jaunty Rhodes horizontally flying ran in Zamamul Haq run out. He literally flew into the stumps. और वो तस्वीर, I exactly remember where I was sitting. The 92 World Cup, obviously, then Imran Khan lifting that crystal trophy as well. One of the fondest memories as a nation that we have, not just in sport. But that run out, मतलब Jaunty always used to feel at backward point. वहाँ से literally भागता हुआ, उड़ता हुआ आया, and he broke the stumps with himself, running in Zamam out. तो वो जो था ना, वो उसमें मुझे था कि यार, that is spectacular. Like that is outstanding. I wish I could do that. I want to do that. Okay. तो क्रिकेट के अंदर and पाकिस्तान में you eat, sleep and drink cricket quite literally. Yeah. किसी भी किस्म की आपकी क्रिकेट in the 90s की team was, it had that spark, it had that buzz around it. मतलब खेलने में उस तरह से होता था, सामने वाली टीमों के खिलाफ पाकिस्तान was one of the biggest names on the circuit. Absolutely. तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर की. So you always used to watch. हमारे घर पे ईद की दावत भी होती थी, so नानी से लेके दादी से लेके बच्चे से एक बैकग्राउंड में स्क्रीन सब बैठे हुए थे. So it used to be a family event. रमज़ान में गली में क्रिकेट हो रही है, उस वक्त सब बाहर सड़क पे भी खेलते थे, कजन्स के साथ भी खेलते थे. So the journey essentially started from there. And then there came a point where I was like, I really want to play this. तो मेरे दो cousins, boys, one was a year older to me, one was 2 years older to me. तो वो जब भी घर पे होते थे तो घर पे पीछे ना एक छोटी सी लेन होती थी. वो इतनी होती थी कि दीवार पे कहीं भी लगी आउट, बराबर वालों के घर पे चली गई आउट. परफेक्ट पिच कि वो इतनी ही है, तकरीबन 22 भी नहीं, मतलब 18 यार्ड किस्म की होगी. तो वहीं पे बॉल करानी, तो घंटों हम 3 वहाँ पर खेलते थे. और फिर dad, like you said, obviously also a dentist, but Gymkhana में veterans cricket खेलते थे. सही. On Saturdays. So there's a funny story behind this as well कि मैंने कहा कि dad ने मुझे कहा कि चलो ना, let's go play in Gymkhana. तो पहले दिन उनको बोलिया कि ये लड़कियां तो नहीं खेलती इस टीम में. तो बॉयज टीम थी quite literally. थी बॉयज टीम ना, मगर अंडर 9 अंडर 10 बॉयज टीम, तो यहाँ तो लड़कियां नहीं खेल सकती. अच्छा ठीक है, तो डैड ने कहा कि मुझे बाय लॉज दिखाओ. कराची जिमखाना प्राइवेट क्लब है. Where does it say that a girl can't play? तो ऑब्वियसली ये तो कहीं नहीं रखा था. तो मेरे अब्बा ने भी कहा कि बेटा मतलब ऐसे तो नहीं होता, लेट्स गो. तो उन्होंने ऐसी बॉयज टीम बनाई हुई थी, मतलब थे ही बॉयज. अंडरस्टूड सी बात थी ना कि कराची जिमखाना बॉयज अंडर 10 टीम, क्योंकि लड़कियां
जेन्युइनली नहीं सही खेलती है, पाकिस्तान ठीक में क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी ज़्यादा, बट ये तो कहीं नहीं लिखा था ना कि लड़की नहीं खेल सकती. सही. एट द क्लब एवरीबडी इज एन इक्वल मेंबर, राइट? Right. तो खैर सारा हंगामा शंगामा हुआ, मैं पहुंच गई. तो अब किसी एक लड़के को तो मेरी वजह से बाहर बैठना पड़ेगा ना. तो ओ एक अच्छा, क्योंकि टीम तो बनी हुई थी पहले से. टीम तो बनी हुई है ना, अभी एक इम्पोस्टर आ गया, वो भी लड़की, ठीक है ना. एक तो दिमाग में तो ये ना कि लड़कियों को तो ये क्या खेलेगी, फिर एक किसी को जिससे मेरी वजह से बाहर बैठना पड़ता था वो नाराज, True. और ऑब्वियसली उसके सारे दोस्त नाराज. सो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ टैकल के कि लड़कों को नहीं पसंद आ रहा. बट दैट वाज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड वेरी यंग, दैट if I have to make a name in this or make a place in this team, तो मुझे अपने क्रिकेट से ही करना पड़ेगा. So I had to be better than most of them. और फिर करते करते इवेंचुअली वही सारे आज मेरे दोस्त हैं. और आज भी जिम खाने आते हैं ना, कहते हैं यार देखा हमारी वजह से, देखा तुमने पाकिस्तान खेल लिया था. So those things happen and I felt that helped me international cricket में बहुत ज़्यादा, because playing with boys from a strength point of view, from a speed point of view, I always had that edge. क्योंकि शुरू में 25 ओवर्स का सैटरडे को हमारा आफ्टरनून में जिमखाना में 25 overs. क्योंकि आधे दिन सुबह बुड्ढे खेलते थे, अच्छा. शाम को हम खेलते थे. सही. तो बुड्ढे इसलिए कह रही हूँ, अब्बा खेलते थे तो कह सकती हो ना. तो वेटरन्स, एंड देन शाम को हम खेलते थे, तो उसमें 25 ओवर्स की बारी बनती थी. और लड़के शुरू में, बिकॉज ऑब्वियसली दे डिडंट लाइक इट कि पहले लड़की हमारी टीम में खेली, हमारा दोस्त भी बाहर बैठा है, तो शुरू के 2-3 साल तो मैंने सिर्फ फील्डिंग की. 2-3 साल? हाँ. वो बड़ी लंबी नाराजगी चली. और वो भी कभी कोई सामने वाली टीम बहुत मार रही है और सबको मार पड़ गई, तो मुझे भी बॉल दे दी कि यार जरा 2-3 छक्के तुम भी खा लो, तो वहां बॉलिंग मिल गई. या बैटिंग में सब जल्दी आउट हो गए, तो तो उस तरह से कभी कभी बैटिंग मिल गई. बट 25 ओवर एंड आई यूज्ड टू लव इट. आई यूज्ड टू लव फील्डिंग. मुझे नहीं फर्क पड़ता था, और जहां सबसे मुश्किल जगह होती थी मैं कहती मुझे वहीं खड़ा हूं. Were you a good player even as a kid? I as a fielder, I'm telling you ना कि that jaunty thing was कि मुझे बनना ही jaunty road था. मुझे सिर्फ फील्डिंग करनी थी. सही. वो इमेज जहन में बैठी हुई थी. वो इमेज जहन में था कि अगर एक बॉल के अंदर एक बंदा ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज कर सकता है, तो गेम में तो बहुत लंबी बारी आती है ना. बैटिंग बॉलिंग भी मिल जाएगी. ठीक है. तो अच्छा, ये तो जिमखाना की कहानी थी. स्टोरी थी वेरी इंस्पायरिंग. तो ये कब तक चली? अंडर 19 की टीम तक? अंडर 19 की टीम तक, अंडर 17, अंडर 19 की टीम में. एंड देन वन डे शाइजा खान एंड शर्मीन खान, हु वर देन रनिंग वुमेन्स क्रिकेट, द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, 2004 में वेस्ट इंडीज वाज ड्यू टू कम टू पाकिस्तान फॉर 7 वनडे इंटरनेशनल्स. सही. ठीक है. और उसमें ये होना था 1 टेस्ट मैच एंड 7 वनडे इंटरनेशनल्स. तो ये ग्राउंड ढूंढ रहे थे. अच्छा. बिकॉज उस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर वुमेन्स क्रिकेट नहीं आता था. इंटरनेशनली there used to be an IWCC, International Women's Cricket Council, and an ICC, International Cricket Council, separate. तो शाइजा एंड शर्मीन जो है वो पाकिस्तान टीम को IWCC से रजिस्टर्ड थे, तो उसे PCB का कोई ताल्लुक नहीं था. तो ऑन देयर ओन अकॉर्ड, अब सोचो इंटरनेशनल टीम आ रही है सामने से. या द क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. दे आर द पायनियर्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान along with Kiran Baloch. So the two of them were looking for ground. So जब पाकिस्तान इंटरनेशनल वुमेन्स टीम है, वेस्ट इंडीज की नेशनल साइड आ रही है हमसे खेलने के लिए, और हम ग्राउंड ढूंढ रहे हैं. जिमखाना वो आए एक दिन, और उन्होंने आके कहा, लकीली हमारा मैच चल रहा था सैटरडे आफ्टरनून, तो उन्होंने आके कहा कि ऑब्वियसली जो भी कमेटी लोग थे कि हमें ग्राउंड चाहिए फलानी तारीखों को, ये चीज़ें, और क्या आपके क्लब में कोई लड़की खेलती है कि नहीं खेलती. तो उस दिन मैं शायद खेल भी रही थी, तो किसी ने पॉइंट किया, तो देखो एक लड़की खेल रही है. सो आई गॉट इन टच विद देम एंड दे सेड कि यहाँ पर ट्राई आउट से एंड स्टफ लाइक दैट्स हाउ पाकिस्तान टीम हुई थी. क्योंकि उस वक्त टीम भी पूरी करनी 15 बहुत मुश्किल था. Absolutely. So this is how that started. This is how you went into Pakistan की official women's cricket team. और उस वक्त अच्छा, तो जब आपने आपको फॉर एग्जांपल आपका इंटरेक्शन हुआ इनसे फाउंडर से, then how soon did you actually started playing? Immediately, because they approached, so this ground hunting was around January. West Indies were due to come in March. तो आपने उस मैच में खेला था वेस्ट इंडीज के मैच? So पहला हमारा था टेस्ट मैच. So पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेले. सही. मेरे टाइम से पहले 2 खेल चुके थे. The last one was 2004 in March. जिस टेस्ट मैच में मैंने खेला था, तो मैंने डेब्यू किया था. तो उस मैच में मैंने अपनी ज़िंदगी में वुमेन्स क्रिकेट की सबसे बेहतरीन बैटिंग इनिंग्स देखी थी. किरण बलोच की 242 उसने किया था, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है. साजिदा शाह के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप थी, कोई 400 रन की. हमने फर्स्ट इनिंग्स में 400 रन हमने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बड़ा स्कोर लगा. देन आई वाज ड्यू टू बैट 1 डाउन.
तो मैंने 2.5 दिन सिर्फ ना पैड पहन के करा नेशनल स्टेडियम की बैल्कनी में ना बस यूं करके बस मैच देखा था, इतने गौर से देखा था कि अभी बारी आई, इतने गौर से देखा था कि पहली बॉल पे आउट होकर मैं वापस आ गई। तो मेरे टेस्ट क्रिकेट में एक अंडा जरूर है, बट विकेटें ली थी मैंने, सिली पॉइंट पे फील्डिंग की थी शाइजा के लिए जो बहुत अच्छी लेग स्पिन कराती थी, वहां पर अच्छे कैच पकड़े थे, इनफैक्ट उसके हेड और फील्डर ही अच्छी थी वो तो मुझे नहीं तो वो, बट यस, सो आई हैव प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, बट सो आई प्लेड दैट टेस्ट मैच, दैट टेस्ट मैच वाज ड्रॉन, एंड देन फिर वनडे सीरीज हुई थी, वो फिर हम 5-2 हार गए थे, बट दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। बट किरण बलोच, वन ऑफ द बेस्ट players in women's cricket, I thought is a huge loss that she didn't continue for Pakistan. अच्छा, तो आप as you mentioned कि आपने तो बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर्स से के साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, and that is how you got into the official cricket team for women in Pakistan. But then उस वक्त, because you're saying कि PCB के अंडर भी नहीं था और there was an international council that was taking care of this, तो ट्रेनिंग सेंटर्स और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्लेयर्स के लिए, क्या उन सब का भी ख्याल वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रखती थी? Everything was single-handedly and funded also by Shaiza Sharmeen. No way, man. So credit where credit is due. Again, I repeat it. Even funded? You cannot take anything away. उनकी एक कारपेट फैक्ट्री होती थी जिसके पीछे उन्होंने बाकायदा नेट्स बनाए थे, और मैं बता रही हूँ ना, हम ग्राउंड हंटिंग जाते थे उनके साथ, क्योंकि आई सेड कि अच्छा जिमखाना में मैं करवा दूंगी, कोई और कहीं कर देगा, तो लिटरली। और ये पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की बात हो रही है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम केम इनटू इंसेप्शन एंड recognized was in 1996. That's where international cricket पाकिस्तान विमेंस ने पहली दफ़ा खेला था। तो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टीम, श्रीलंका और इंडिया जो हमसे विमेंस क्रिकेट बहुत पहले से खेल रहे हैं, वी वर relatively new. So from 1996 to 2004 was with Shaiza and Sharmeen under the IWCC. और उस ज़माने में सिंगल हैंडेडली इंटरनेशनल टूर्स अरेंज कराना, फंडिंग रेज करना, सारी चीज़ें। तो बेसिकली बस एक एथलेटिक स्पिरिट थी इन खवातीन के अंदर, उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम बनानी है। अरे भाई, पाकिस्तान टीम का कैंप उनके घर में लगता था, बोर्डिंग, हाउसिंग, लॉजिंग सब, मैंने भी वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा है। सो नोबडी नोज दीज स्टोरीज, बट हैड दे नॉट लेड those stepping stones, आज वो सीढ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट women's cricket की है वो नहीं होती। That is such an inspiring story because that shows how invested you people are in the game, right? Because this is not just a selection that happened after an audition. You told your father कि ये 4 लड़के खेल रहे हैं, मुझे exactly यही चीज़ खेलनी है, I don't care, make my space, do something about it, and then they found you. Even उस ज़माने में pitches हम खुद रोल करते थे, क्योंकि ग्राउंड तो तैयार नहीं होता था, तो ऐसा थोड़ी, क्योंकि we were not first choice for anybody to give us a ground. Yeah. क्योंकि अगर अंडर 13 के कोई क्लब के भी लड़के खेल रहे हैं तो आप लड़कियां वेट करें, पाकिस्तान टीम की लड़कियां हैं, nobody knew about women's cricket in Pakistan. अच्छा, PCB ने कब adopt किया women's cricket? So 2005 was when ICC and IWCC merged into one international organization. अच्छा. So उस वक्त regulation ये था कि all cricket in a country will be under one board, and that board will be associated with the ICC. That is when women's cricket came to the PCB. 2005 में ये merger हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो फिर यही existing team थी जो आपके founders ने बनाई थी? नहीं, फिर उसमें variation हुई। अब variation हो गई। That's when we didn't, Shaiza Sharmeen and Kiran didn't continue. अच्छा, PCB ने अपने heads appoint किए होंगे। PCB ने systems in place किए, कुछ अनबन हुई थी, whatever, but in that we lost Kiran as a player, and I thought उस वक्त किरण बलोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान। Okay, but you were still a relatively new player to the team. Yeah, yeah. So literally 8 months down the road, 9 months down the road, the PCB का कैंप लगा, फिर सब सिलेक्शन के लिए वहाँ गए, फिर अलग चीज़ें हुई। तो हम तो उस वक्त 18-19 साल के बच्चे थे ना, तो हम तो जहाँ क्रिकेट हो रही थी, मेरे साथ मेरे बाकी के जितने भी साथी थे, हम चले जाते थे। लाहौर चले गए तो नए लोग मिल गए, इस्लामाबाद चले गए तो नए लोग मिल गए। You know, you met so many people from different walks of life, different stories, different struggles, and it was just beautiful क्योंकि कॉमन एज ग्रुप था 18 से मे बी 22, मेजॉरिटी लोगों का। हमसे कुछ छोटे भी थे, हमसे थोड़े से कुछ बड़े थे, बट जनरली 80% वर बिटवीन 18 and 20, और सबका एक ही गोल था यार, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी। सो that was a common unifying factor कि कौन कहाँ से आया, क्या जबान बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, which is why cricket is so rich. It has so much energy even for the audience and for the players as well. At least to mostly it attracts a complete audience. Nah, there's no barring in that. Absolutely. अच्छा, आप कैप्टन कब बनी? 2006. So Hong Kong was coming to Pakistan in 2006. उस वक्त because पाकिस्तान नया था, वर्ल्ड कप होने वाला था 2009 में in Australia. It would be the first 50 ओवर वर्ल्ड कप अंडर द ICC जो पाकिस्तान ने खेला था। उससे पहले शाइजा और शर्मीन एक वर्ल्ड कप खेल चुके थे, बट दैट वाज
before the अच्छा। ICC was merged, but वो वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करता है प्रॉपर, जो अच्छा, पहले हो चुका था. ठीक है, वो तो ये ICCW का था. बट वो स्टैट्स में भी विमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप है. बाय द वे, सबसे पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप उसमें लड़कियों पाकिस्तान की टीम सबसे थी. नहीं, हम तो नहीं थे उस वक्त. 1973 अच्छा. द फर्स्ट एवर क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप वाज अ वुमेन्स वर्ल्ड कप, बाय द वे. ओह. किसी से भी बाय एंड लार्ज पूछोगे ना पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, सब कहेंगे 1975. द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, was 1973. It was a women's world cup. 2 years later a men's world cup followed. So just Interesting. for stats gurus who are out there. But 2009 में हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था for the 50 over world cup. इस वक्त तक T20 नहीं आई थी. 2006 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ. So Right. we had to play the Asian qualifier. Right. Okay, and we had to then win the Asian qualifier to qualify for the qualifying round for the World Cup. Wait, what? So World Cup ये रहा. ठीक है, इसके बाद है क्वालिफायर्स फॉर द वर्ल्ड कप, और उससे पहले रीजनल क्वालिफायर्स हैं एशिया के. ठीक है. तो पाकिस्तान और एशिया उस वक्त पाकिस्तान और एशिया बोल रहे हैं, पाकिस्तान और हांगकांग उस वक्त एशिया की टॉप टीमें थी. ठीक है, और हमारा उनसे 3 ODI मैचेस का वो था, टूर्नामेंट था, तो हमने वो खेलना था. तो वो हम 3-0 जीते थे. तो वो वहां से हमने उसमें, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बिकेम कैप्टन व्हेन आई वाज इन 2006. तो वो हमने 3-0 हम हांगकांग से जीते थे. और वहां से हम क्वालिफाई किए फॉर द ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो 2007 में साउथ अफ्रीका में हुए थे. अच्छा डॉक्टर रू, जब आप प्लेयर थी तब लाइक यू सेड कि PCB ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ था पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को, लेकिन जब आप कैप्टन थी तब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था. तो आपका एक्सपीरियंस मस्ट बी वेरी डिफरेंट एज अ प्लेयर बिफोर PCB adopted the team versus after when you were a captain. Not really, not at the start, and not for quite a long period actually. Really? Because उस वक्त भी it was almost like women's cricket चल रही है. We're always like, backbencher नहीं होता वो जो पीछे बैठा है. अच्छा, मुझे ना I'm so sorry to cut you. I want to understand कि how does this biasness come? For example, अगर international organization है जिसने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि भाई हर कंट्री में एक बोर्ड होगा, वो जो है वो मेंस क्रिकेट को भी देखेगा और वो वुमेन्स क्रिकेट को भी देखेगा, एंड दे आर सपोज टू बी सेपरेट एंटिटीज हु टेक केयर ऑफ दैट. तो जब आपके मैचेस प्लान होते हैं तो वो हजरात के भी होते हैं और वो खवातीन के भी होते हैं. सॉरी, आई एम बीइंग वेरी लाइक कैजुअल अबाउट दिस, बट देन अगर एक मैच है, डेजिग्नेटेड सीरीज है जो मेंस की होनी है और एक डेजिग्नेटेड सीरीज है जो वुमेन की होनी ही है, तो फिर हाउ कम दे डोंट हैव बोथ ऑफ देम हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल. सो वुमेन्स क्रिकेट वाज वेरी न्यू. Right? So उस वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह चलेगा, क्या होगा, so they were more so teething issues than a bias. जो उस वक्त था ना, कि वो जो ट्रांजिशन था कि विमेंस क्रिकेट पहली दफ़ा PCB के अंडर आई है, फ्यूचर टूर प्रोग्रामिंग जिसको FTP कहते हैं, वो किस तरह से प्लान होती है, सिलेक्शन कौन होगा, कोचेस कौन होंगे. So there was a lot of things that were coming together at that point. ठीक है ना, तो वो चीज़ें थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक 2000 अभी बहुत काम होना था, बहुत लंबा सफ़र था. और वो सारे स्टेपिंग स्टोन्स की कहानी वो है कि जब प्रॉपर कहते हैं ना विमेंस क्रिकेट केम अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेमी प्रोफेशनल हुआ, फिर प्रोफेशनल स्पोर्ट हुआ, तो वो वाली चीज़ें बहुत सारी थी. उसमें लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे क्योंकि हमें खेलना होता था. बट देन प्लानिंग टू टीम टूर्स, एशिया कप्स उस ज़माने में बहुत हुए, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका पहले, फिर आखिर में बांग्लादेश भी आ गया था. तो वो उस किस्म की चीज़ें होती थी. फिर 2009 वाज द बिग ब्रेक थ्रू, बिकॉज इन 2007 when we played the qualifiers, we 8 teams in that qualifiers, and top 2 teams of the 8 were supposed to then qualify for the World Cup. Okay. So Pakistan and South Africa were the 2 finalists in that, and that is how we qualified for the 2009 World Cup. Excellent. अच्छा, तो how was your, चलें आपने ये तो बता दिया कि in terms of the establishment of the team itself, a lot of work had to be done because it was a fairly new concept for PCB to have a separate team for women. But as a player, how was your experience different when you became a captain? So experience point of view, तो nothing like from a logistics or an admin or an organization change, but सिर्फ ये होता है कि it's like it's a very, even right now when you're talking to me, like you get goosebumps about it, कि it's a very honorable feeling तो अपनी जगह है, but it takes time for it to sink in कि यार मतलब look at the population in our country and the number of people who are crazy about the sport, and I have been honored and blessed with this position, and I can only be grateful and thankful, but there comes a huge responsibility then for me to deliver because of the trust put in me. किसी वजह से ही कप्तान बनाया ना,
और प्लस अब 20 साल की उम्र में और साथ वाले भी 18, 20, 21, 22 साल के हैं, तो उनको लेके चलना. बट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, उस वक्त सिर्फ एक यूनिफाइड गोल था, बिकॉज ना पैसा इन्वॉल्व था, ना कोई लाइमलाइट थी, ना इंस्टाग्राम था, ना कैमरास थे, हमारा कोई मैच उस वक्त टीवी पे नहीं आता था. इट वॉज ऑल फोकस्ड अबाउट कि यार we have to win, we have to do something for Pakistan. अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों limelight ज़माना नहीं डिफरेंट थी? था ना. बट ज़माना different था ना. मेल टीम्स के लिए तो थी. जनरली दुनिया में उस वक्त सिर्फ मेंस क्रिकेट कवर होती थी. अच्छा. वुमेन्स क्रिकेट बहुत कम होती थी. फॉर दैट मैटर 2009 के वर्ल्ड कप में सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल टीवी पे आया था. 2010 में भी सेमीफाइनल और फाइनल सिर्फ टीवी पे था. आहिस्ता 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 2010 के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप हो ही गया सेपरेट पूरा. The whole women's World Cup. So that's where the growth of women's cricket came, where the ICC recognized that this is as much a valued commodity that we have. It will become a valued commodity if you value it. Absolutely. Like सीधी सी बात है. You Absolutely. have to do work for it. Absolutely. ये तो अजीब सा आर्गुमेंट है कि वो तो कोई देखता नहीं, आप दिखाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे? वो जो दिखता है वो बिकता है, सीधी वाली वो वाली बात है. राइट. अच्छा, तो देन वैसे जब आप कैप्टन बनी होंगी और बिकॉज द टीम वाज स्टिल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ फॉर्मिंग एटसेट्रा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के एक रेगुलर कैप्टन से तो थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, आई एम अज्यूमिंग. सो व्हाट वाज दैट लाइक? मैं पहले एक थोड़ा सा वो बता दूं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती थी ना, उसमें क्या होता था. तो अब तो सुनोगे तो हंसेंगे सब लोग कि हम अपने कपड़े भी खुद धोते थे. ठीक है ना. मैं जिस ज़माने की बात कर रही हूँ कि आवर डेली अलाउंस यूज्ड टू बी 500 रुपीज़ एट कैंप. ठीक है ना. जब हम फॉर इंस्टेंस हमारा कैंप लगता था, दिस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाथ दैट women's cricket has gone through because of the times. Nothing against anybody or nothing holding anybody to that, but it is just कि हर चीज का एक सफर होता है. It's very real and you right? should share it. And that is what all those people went through at that point. के हमारा तो कभी कभार हम अपने फिटनेस ट्रेनर को बोलते थे कि आज कपड़े बहुत धुले, आज जिम सेशन हो गया. मतलब just putting into context आज जिम सेशन हो गया क्योंकि आज हम सब ने अपने कपड़े धोए, सब मजे से बैठे हैं अपने कपड़े धो रहे हैं. हमारा मुरीद के में कभी कभार कैंप लगता था बिकॉज इट वाज अ सिक्योर. कैंप में क्या होता था एग्जैक्टली? कैंप में फॉर इंस्टेंस 15, 18, 20, 22 व्हाटएवर एक्स लोगों का नाम आया, सब ने बोरिया बिस्तर पैक किया, सूटकेस लिया, किट बैग लिया. हम 2 हफ्ते का कैंप, 3 हफ्ते का कैंप, महीने का कैंप, व्हाटएवर इट माइट बी. सो वी आर बोर्डेड एंड लॉज्ड इन द सेम प्लेस. मुरीद के में फैसिलिटी अच्छी थी बिकॉज देयर वाज 4 or 5 nets, 2 different cricket grounds, swimming pool वगैरह. तो इन हाउस खाना पीना वहीं पर होता. तो इट ऑलवेज बिकेम लाइक अ नहीं, आप मूवीज में देखते हैं कैंप है, आई एम गोइंग फॉर अ कैंप, के सारे दोस्त चले वहाँ पर एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट टुगेदर. बट उसमें फिर हमारे सेशंस लाइक मॉर्निंग sort of 2 hours would be a fielding session, afternoon would be nets. पर्पस होता था वो ट्रेनिंग होता था. क्रिकेट का कैंप है ना, तो फिटनेस, फील्डिंग और फिर करीब की लड़कों की टीम्स अंडर 15 बॉयज, अंडर 17 बॉयज, अंडर 19 बॉयज से हम लोग फिर मैचेस खेलते थे. क्योंकि ऑब्वियसली अपना स्किल तो अपने से बेहतर से खेल के ही आप उसको आप असेस कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, काइंड ऑफ थिंग. तो हमारे कैंप्स उस तरह से लगते थे फॉर एनी इवेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट. That's how women's cricket started to grow. अच्छा, okay, so since we're talking about this, Dr. Rooj, आपका मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं and I was watching a pretty recent one जिसमें आपने बोला कि मैं तो as a captain सोचती थी कि जहाँ भी जो जैसा भी कैंप होगा मैं तो ज़रूर जाऊँगी. And as many things that I can do, there was one statement that you made actually that someone's 50 runs, someone's 20 runs are better than someone else's 50 runs is because आपको नहीं पता किसको आप स्कोर शीट से जो है ना उस स्किल सेट की एलिजिबिलिटी का ख्याल नहीं रख सकते. आई थिंक that was a very crucial statement that you made. But I'm trying to understand कि regardless of the क्या बोलते हैं energy that players bring and even captains and the skill set that all of you have, there is still among the audience a lack of sentiment for women's cricket team as opposed to the sentiment that they have for men's cricket team. Why do you think is that? My simple answer to this is, and it's taken time, as any journey takes time. You have to fight against so many things. I don't even call it breaking barriers. It's almost smashing barriers down. कि आप cultural barrier fight कर रहे हैं, आप एक almost कह रहे हैं religious sentiment को भी fight कर रहे हैं, आप एक general cricketing कह रहे हैं religion को fight कर रहे हैं कि assumption तो ये नहीं कि it's a men's sport और इट्स अ जेंटलमैन्स गेम और क्रिकेट की बात अगर हो रही है तो लड़कों की ही बात हो रही होगी, बट ऑब्वियस राइट. तो उस जब नैरेटिव को आप फाइट करें तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द हाउस, रिश्तेदार, मोहल्ला, द बोर्ड इटसेल्फ, एवरीबडी. सो इट वाज अबाउट माय फाइट थ्रू आउट द जर्नी वाज वैल्यू द वुमेन्स गेम द सेम एज द मेन. सिंपल. मैं नहीं कहती पैसे बराबर कर दो,
मैं नहीं कहती कि वो टेलीविजन पे विमेंस क्रिकेट उतना ही दिखाओ जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ वैल्यू, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए जो पाकिस्तान मेंस टीम का कप्तान है उसकी और पाकिस्तान विमेंस टीम के कप्तान, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट शुड बी द सेम. मॉनेटरी एस्पेक्ट विल फॉलो एज द गेम ग्रोज. ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. लड़कों की क्रिकेट को भी सदियां लग गई पहुंचते पहुंचते, लड़कियों की क्रिकेट पे भी द टाइम, द इन्वेस्टमेंट, द फैसिलिटीज विल ओनली बी जेन्युइन इफ इट इज वैल्यूड. तो वो लड़ाई काफी थी हमारे विद बोर्ड्स गॉन बाय कि यू हैव टू वैल्यू द सेम प्रोडक्ट. कि अगर बिजनेस क्लास की फ्लाइट लड़के जा रहे हैं तो लड़कियां भी तो बिजनेस क्लास जाएंगी ना. जिस क्वालिटी के मर्केंटाइल से या कपड़ा आपका बन रहा है तो वो भी लड़कियों का भी वही बनना चाहिए. खाना पीना भी सेम होना चाहिए, अकोमोडेशन भी, क्योंकि दोज आर बेसिक अमेनिटीज और बेसिक आप वो वैल्यू के उसमें आ जाएंगे ना. एटलीस्ट पैरिटी में तो ये चीजें मैं अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, मॉनेटरी एस्पेक्ट विल फॉलो एज द गेम ग्रोज. Yeah, but at least in terms of training opportunities तो सबकी same होनी चाहिए. Facilities. So that was a massive वो कि the push, the determination of the players, and there's a lot of boards and a lot of chairmen who came across who genuinely supported women's cricket. But वो एक ये ज़रूर होता है कि वो अप एंड डाउन वाला सफ़र है, बिकॉज दुनिया बहुत तेज़ी से विमेंस क्रिकेट को लेके ग्रो कर गई है. एंड वी ऑब्वियसली टेकन अ टाइम एंड इट्स बिन एन अप एंड डाउन, इट्स बिन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड. फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए, डोमेस्टिक में क्रिकेट में पैसे आए, मैच फीस आना शुरू हो गई. एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट नाउ विमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट. Right. Acha, so you were also in the selection committee for a good while. How long was that for? Just under 2 years. Okay. So आपका क्या selection criteria होता था when you were selecting players? Performance. It's as simple as that. Okay. ठीक है ना. Again इस वक्त भी जैसे अगर मेंस क्रिकेट पे भी बात कर लें, इस वक्त पाकिस्तान टीम probably has just fallen off the boil a little bit. Reputations पे हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते हैं. हम पास्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि द पास्ट कैन बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नॉट अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस. यू कांट लिव इन द पास्ट. यू कैन मेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट, बट दैट कांट बी योर होम, राइट? क्योंकि I'm trying to understand how would that translate into practical life. कि अगर मैंने 3 साल पहले एक सीरीज में कुछ किया था, बट अगर मैं इस वक्त नहीं कर रही वो या नहीं कर रहा वो, और अगर मुझे मेरे 4 ओवर में 40 रन पड़ रहे हैं, ठीक है ना, एज अ बॉलर, या अगर मैं ओपन बैटिंग कर रही हूँ और पावर प्ले में मैं रन नहीं कर रही हूँ और मैं रन अ बॉल खेल रही हूँ, और टीम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि आपके रन अ बॉल से ज़्यादा होने चाहिए, बट चूंकि मैंने वो 3 साल पहले किया था, तो आई स्टिल डिजर्व अ प्लेस. नो, यू डोंट. Right. बट यू ऑल्सो डोंट व्हेन देयर इज अ रिप्लेसमेंट मौजूद. ठीक है ना. तो विमेंस क्रिकेट में थोड़ा सा मेंस क्रिकेट के मुकाबले में डिफरेंट ये होता था कि विमेंस क्रिकेट में बिकॉज एक्सपीरियंस शायद इतना नहीं होता, एक्सपीरियंस कम था उस वक्त, टर्न अराउंड कम था, टूर्नामेंट्स कम थे, प्लेयर पूल बहुत कम था, और जो बेहतर लड़कियां थी वो सिग्निफिकेंटली बेहतर थी फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. तो ये होता था कि बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि मौके पे ज़्यादा मिलते थे, बट देन दैट वाज द ओनस ऑन द प्लेयर्स कि बिकॉज हमारे पास कंपटीशन नहीं तो आपको मौके भी ज़्यादा मिलते हैं. अच्छा, प्लेयर पूल के ऊपर आई वांट टू टॉक अबाउट कि आपके पास जो कोहोर्ट आता था, एटलीस्ट क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, तो दे मस्ट बी फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. सो you, in terms of education, were they also multi-careered such as yourself के कोई dentist है या not dentist but like something कम else? और almost bare minimum. तो यूजुअली किस तरह के बैकग्राउंड बट देखे ना, इसमें तो वही ना, जो क्रिकेट का पागलपन है और जुनून है, वही चीज साबित होती है ना कि लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को क्रिकेट खेलनी है. एंड बिकॉज उस वक्त तो रोल मॉडल्स भी नहीं थे हमारे. वी वर प्रॉब्ली द फर्स्ट layer of players who eventually maybe made some name. अब तो खैर बहुत बड़े बड़े हमारे women's cricket में माशाल्लाह रोल मॉडल्स क्रिएट हो गए, जिसको who are inspiring the whole next generation right now. ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. बट उस वक्त तो ये होता था कि वो, बट जो क्रिकेट का जुनून है, सारी बहुत सारी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बैकग्राउंड, यू हियर स्टोरीज. मतलब मेरी और आपकी तो कहानी कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, कि अपने घर से लड़के, गर्ल्स वुड ड्रेस अप एज बॉयज़, बाल कटवा के अपने निकल जाते थे ताकि घर वालों को पता ना चले, सामने वाले लड़कों को पता ना चले कि वो लड़कियां हैं. खेल के किसी के अनफॉर्चुनेटली मतलब बंद कर दिया घर में कि निकल नहीं सकते. सम आर बीइंग फिजिकली डिटेन्ड इन द हाउस कि नहीं खेलना क्रिकेट. मतलब रिश्तेदार बोले, मुझे तो ये भी बोला था किसी ने कि आपसे शादी कौन करेगा, रंग काला हो जाएगा तो शादी कौन करेगा. तो ये तो चीज़ें जब मैंने सुनी है तो फिर मतलब सो
But the stories of women's cricket are unbelievable. So a lot of अच्छा, girls have. तो in terms of the challenges that female cricketers faced in the past, तो चलिए समझ में आता है कि बहुत ही nascent थी टीम और बहुत PCB तक में नहीं थी, तो इस तरह के issues create होते थे. लेकिन now that you were saying that it has become a fairly established field, at least not as close as to what the male cricket team is, but still comparison में काफ़ी बेहतर as opposed to previously. But even today, how would you say the team in terms of resources at least is lacking? No, I think women's cricket in Pakistan now is complete. Is complete. ये आप नहीं कह सकते from a financial remuneration point of view, from contracts point of view, from facilities, from रहना पीना खाना, flying, कपड़े. ये आप कह सकते हैं कि in the last maybe 4 to 5, 6 years ये जो reforms आए हैं, the onus is now on the players to perform. Let me put it that way. देखिए, there is always room for improvement. मैं नहीं कह रही कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया को मैच कर सकते हैं हम इस वक्त फैसिलिटीज़ में, ना हम कोई इंडिया को मैच कर सकते हैं, ना हम इंग्लैंड को मैच कर सकते हैं क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे आप कोचिंग स्टाफ ले लें या मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ले लें, फैसिलिटीज़ देख लें कि पिचेस का हाल, इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें अभी भी there's room for improvement. Sure, but you're saying that it's enough for somebody to deliver their maximum on the field. There is always room for improvement, but there's no excuse. You can't pinpoint a finger now to say कि ये नहीं था इसलिए ये हो गया. अच्छा, तो this would perhaps start a very big debate, but since we're on the topic, like we're right there, I have to ask this. कि अच्छा, this question of mine is for women's and men cricket both, general for cricket, कि अगर आप कह रही हैं कि in terms of the available resources कोई excuse नहीं है किसी player के पास, then what do you think is the explanation for the decline in performance? इसके लिए तो एक अलग podcast करनी पड़ेगी फिर. तुम्हारे पास टाइम है इसका? Sure. Yeah, no, okay, again, Pakistan cricket generally I just feel has taken a hit. और उसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टोरल आर्ग्यूमेंट और डिबेट है ये कि सिस्टम्स हमारे क्या हैं, किस माइंडसेट की हम कोचिंग इस वक्त कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, किस तरह के प्लेयर्स हम चाहते हैं, किस हमारी जो टीम की जो क्या कहते हैं टैक्टिकल या आपकी जो टीम की मांट्रा है कि वो क्या है, कि आपने किस किस्म की टीम, आर वी इज़ आर एम टू बिकम बिग कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. आप सामने वाली टीम के साथ कंटेंडर होंगे तो आप ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं ना. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आर वी जस्ट सॉर्ट ऑफ एट द मोमेंट के सिस्टम चल रहा है, कुछ भी हो जाए, फिर हम एक बड़े वर्ल्ड कप में हमसे परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर हम रेडिकल उसमें चेंजेस लाते हैं. माई आई थिंक देयर इज अ सिस्टम दैट नीड्स टू इम्प्रूव. ओके, फ्रॉम एज ग्रुप क्रिकेट, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, लैडर स्टेप होता है ना कि एवरी रंग कनेक्ट्स टू द अदर, कि एज ग्रुप क्रिकेट के अंदर कोचिंग स्टाफ ऐसा हो कि वही माइंडसेट और वही स्किल लेवल डेवलप हो कि अंडर 13 का प्लेयर जब अंडर 15 में आए, 19 में आए, जब ए ग्रुप में और नेशनल टीम में खेले, तो उसको वो वैसा ही प्लेयर आए जैसा पाकिस्तान टीम को इस वक्त ज़रूरत है, जो वर्ल्ड बीटर्स हमें चाहिए. तो सिस्टम की जहाँ तक चीज़ें हैं, प्लेयर्स की भी बहुत सारी इसमें खामियां हैं और गलतियां हैं कि प्लेयर्स भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या आने वाले खेल रहे हैं, एवरीबडी नोज व्हाट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज़. आपके पास दुनिया में टीम्स और प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं, तो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोच हाथ पकड़ के आपको नहीं बाहर लेके जाएगा. सो इट्स हैंड इन हैंड के बोथ दीज थिंग्स वर्क हैंड इन हैंड. और आई थिंक कहीं ना कहीं आई जस्ट फील के अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना, वो जब तक नहीं इतना होगा, इतना स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल होगा कि लाइक आई सेड, आपने मुझसे जब पूछा कि मैं जब चीफ सेलेक्टर थी तो क्या था, परफॉर्मेंस. सिंपल, इट इज़ परफॉर्मेंस. ठीक है ना, परफॉर्मेंस है तो आप खेलेंगे. और उसमें वही बात आ जाती है कि अगर आपने 50 रन किए बट अगर हम हार गए और अगर उस 50 रन का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था मेरे लिए और या एज सेलेक्टर और कैप्टन और प्लेयर, तो उस 50 रन का कोई फ़ायदा नहीं. बट अगर आपके 20 रन ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला मैच की तरफ से, मैच के लिए मूव्ड अस इन द राइट डायरेक्शन, that is far more impactful. So those kind of things, I just feel as an entire system, we ourselves need to look into our own performances and be honest with ourselves.
Absolutely. Acha, I want to touch base on one thing that you mentioned. Ke a lot of women, even when they want to play, they often don't get the opportunity to do so because, well, there is a general notion in the family and in the society ke this is a male-dominant sports, and वैसे भी there are very selected, unfortunately, very selected professions that are suitable for women, at least in terms of how respected they are perceived, and other professions are very like very rough, very redundant, बहुत soft professions ख़वातीन के लिए limit कर दिए गए. But I'm trying to understand what was your journey like when you were trying to when you communicated this to your parents के. Also, let's please talk about कि dentistry इस पूरे कहानी में कहाँ पे आई. आप अच्छा खासा अंडर-19 जिमखाना में खेल रही थी, उसके बाद आप जो है वो बेहतरीन लोगों से मिली जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डालने लगे थे. When and why did you decide कि अच्छा मैं बीच में डेंटिस्ट बन जाती हूँ 4 साल के लिए, I'll see you later. I'll see you later. अच्छा, तो पहले तुमने जो बात की ना कि ये प्री-कंसीव्ड नोशंस हैं या कल्चरल नॉर्म्स बन गए कि ये काम ख़वातीन करेंगी, ये काम मर्द हजरात करेंगे, तो ये भी तो हमने ही बनाया ना. So, you know, it is about breaking that barrier in terms of confidence, and you always need somebody who will break that first door down. Except that the people who are facing it are not the ones who made these barriers for themselves. So, but then you need someone to be okay, and then in breaking that barrier, it's not just because I want to, but then you have to be good enough. I am a huge believer of merit. ठीक है, that's a fair enough point. I am a huge believer of merit, and that is the only way it should be. ठीक है कि आपके पास अगर A and B हैं, and if they're equal, then you can decide whether you wanna who you want to hire. But just because नहीं हो सकता. ठीक है. Okay. I am not one of those कि just because हमने नंबर पूरी करनी है, just because हमने दिखाना है, या just because दुनिया कर रही है. I'm sorry. You have to be good enough. Okay. Simple. You have to be good enough कि आप उतने अच्छे हो, आपको मौका मिल जाएगा. Right. So for me, that in terms of के वो जो आप कहते हो ना कि मौका नहीं मिला या ये काम सिर्फ खातून कर ले, if you're good enough, by all means. That is my simple thing कि merit उसमें compromise नहीं हो सकता. That's a fair point. ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप दो चीज़ें कर रहे हो कि एक तो आप क्या कह रहे हो, half cooked को आप encourage कर रहे हो, so you're lowering the bar. अच्छा, वैसे इस पे मेरा slight disagreement ये है कि half cooked तो सब होंगे at some point. नहीं, ठीक है, तो अगर बराबर वाला भी हाफ कुक्ड है तो फिर ठीक है, बट अगर बराबर वाला बज़ाहिर बेहतर है, फिर आप ये काम नहीं कर सकते. अच्छा, तो आप तो क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप ये कह रहे हो कि यार ठीक है, इतने में भी I can not be a complete product, but I will still get hired. नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही. मैं तो बात कर रही हूँ acceptance of being hired as a half cook for person A and person B. Do you get what I'm saying? तो बट फिर तो डिपेंड करता है ना आप काम क्या कर रहे हो. अगर वो रोल में हाफ कुक्ड हो कि आपको रोल बेहतर कुक कर देगा, या आप उस रोल में सीखेंगे, अगर इफ दैट इज द यूएसपी ऑफ दैट रोल, तो ठीक है. तो ठीक है ना, वो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है ना कि आप बॉस हो, आप कहते हो ठीक है यार मुझे एक्स बंदा चल जाएगा, मैं उसको ग्रूम करूंगी अपने हिसाब से. क्रिकेट इज लाइक दैट. तो दैट इज फाइन, एंड क्रिकेट इज अ लर्निंग. Any sport for that matter, or any profession for that matter, is always learning. But for instance, कोई senior post है जहाँ आपको बिल्कुल मतलब proper professional चाहिए, तो वहाँ, so that is why I guess a very क्या कहते हैं वो circumstantial discussion कि कहाँ पर क्या चीज़ है. But जहाँ तक merit की बात है ना, मैं merit पे आप बराबर हो, then you can make a decision कि ठीक है 100 बिस्मिल्लाह आप वो काम करें, but not when the other person is visibly better at the job. चलें, ठीक है, fair. तो coming back to the question, why dentistry? यार डेंटिस्टली इसलिए कि एक तो अम्मा अब्बा दोनों डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अजमत एंड डॉक्टर मुमताज़ खान दोनों डेंटिस्ट हैं. दे वर बिन इन द प्रैक्टिस सिंस 1980. बट जब हम स्कूल जाते थे, मी एंड माई सिस्टर वेंट टू सेंट जोसेफ्स. जहीन मेरी बहन का नाम है, एंड मी एंड हर आर ईयर. नाम ही जहीन है. ओह, बहुत जहीन है. बस वो आई एम तो जस्ट द सिबलिंग. तो I don't think that's नहीं, मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़हीन है, और उसकी कहानी आपको आगे मिलेगी. सो मी एंड हर वी वेंट टू सेंट जोसेफ्स. तो अम्मी अब्बा का क्लिनिक उस वक्त सदर में फरीद चेम्बर्स में होता था, विच वाज कपल ऑफ मिनट्स फ्रॉम स्कूल. तो अम्मा जो है उस वक्त हमें स्कूल से पिक करती थी और हमें क्लिनिक वापस लाती थी, और फिर वहाँ से वो अपना क्लिनिक रैप अप करके फिर हम घर जाते थे. तो हाँ, तो आपने हमेशा से देखा था एक क्लिनिक का सेटअप. बट चॉइस थी ना, क्योंकि मेरी बहन तो जाके लेट के टीवी देखती थी क्लिनिक में भी, बस क्यों ये सब, और मैं अम्मा और अब्बा के सर के ऊपर ना चढ़ कर के ये पता नहीं कि पेशेंट के मुंह में क्या हो रहा है. सो इट वाज जस्ट इंटरेस्ट कि हाउ डज समथिंग दैट इज दिस स्मॉल
grown men and science. women crying because of toothache, and how magically when they walk out of the practice, like they've got a smile on their like, face, you know, like आप तो मतलब God magical sent doctor हैं. मतलब magical सी बात है ना कि उसके अंदर, and then you know like the mechanical, the you know the drills in the machines and the filling, Imagine. मतलब वो bड़ा मुझे वो करता था कि यार it looks pretty cool. So सही. it was interest, and then अच्छा तो was dentistry was interest in dentistry before your interest in cricket developed? मतलब मैं समझना चाह रही हूँ कि ज़्यादा क्या चीज़ थी और पहले क्या चीज़ डेवलप हुई. क्रिकेट को तो ट्रम्प करना, हाँ वो क्रिकेट का तो आपने बताया ना कि वो तस्वीर आपने देख ली थी and you were like क्रिकेट को तो ट्रम्प करना फील्डिंग ऐसी होगी. अच्छा मैं बता दूं 2004 मार्च इज व्हेन आई प्लेड फॉर पाकिस्तान, डेब्यूट फॉर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ. जनवरी 2004 में शाहिजा शर्मीन से मेरी मुलाकात हुई थी. जनवरी 2004 वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल डेंटल स्कूल, BDS FGDC. So my cricketing international career and my dentistry ran together for 5 years. Oh God. And as soon as you graduated in 24-25 house job के बाद you became captain 26 में. 26 नहीं, sorry, 2006 में. No, so this was during dental school. अच्छा. 2004 5 I graduated 2008. सही. So wow. So my dentistry and my cricket for the longest time ran together. भाई ये था कि मेरे किट बैग में मेरी किताबें होती थी. तो जब मैं कैंप में, बिकॉज कोई लाइसेंस देने को तैयार नहीं है ना, क्योंकि उस वक्त विमेंस क्रिकेट के बारे में किसी को पता ही नहीं था और किसी को उतनी कदर ही नहीं थी. तो डेंटल स्कूल में प्रोफेसर्स को थोड़ी फर्क पड़ा था कि मैं क्या करूँ, खेल कूद कर रही है, क्लास में नहीं आती. अम्मा अब्बा डेंटिस्ट है, सब आता हूँ भाई. चिप के साथ थोड़ी पैदा हुई हूँ मैं कि अगर अम्मा अब्बा डेंटिस्ट है तो मुझे सारे जवाब आते होंगे. सही बात. सो नोबडी वाज कटिंग मी एनी स्लैक इन डेंटल स्कूल, एंड इफ आई डिडंट परफॉर्म हु वुड पिक मी इन द पाकिस्तान टीम, एंड फेयरली नहीं परफॉर्म किया तो बाहर बैठो भाई. बिल्कुल. ठीक है ना, कप्तानी भी जाएगी, न्यूली डेवलपिंग है तो ठीक है ना, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको खेलनी है. तो माई किट बैग वुड ऑलवेज हैव बुक्स. तो हमारे ऑफ टाइम में मैं पढ़ाई करती थी, बाकी लोग मस्तियाँ करते थे, सोते थे, कुछ भी करते थे. बिकॉज आई रियलाइज वेरी क्विकली आई हैड टू बी वेरी गुड एट बोथ, अदरवाइज खुद से भी झूठ बोल रही हूँ, टीममेट्स के साथ भी जाती है, वहाँ भी फेल हो जाऊंगी, यहाँ से भी ड्रॉप हो जाऊंगी. You picked the two most difficult weirdest combination ना, two most difficult professions. नहीं बड़ा फायदा होता है. क्रिकेट में 2-3 दफा लोगों के दांत टूटे हैं, फिर मैंने ठीक किए हैं. Absolutely. अब कमेंट्री में भी कभी कभार जिक्र होता है जब मैं होती हूँ, तो दांतों की मसला नहीं है. अच्छा, लेकिन आपके जहन में अपनी खुद की करियर ट्रेजेक्टरी क्या थी उन अर्ली इयर्स में, जो आप यूनिवर्सिटी में भी थी, आप क्रिकेट भी खेलती थी? Even up till I retired from international cricket, women's cricket in Pakistan was still an amateur sport. Zero money. I never made any money out of playing cricket. क्योंकि जब तक मैंने क्रिकेट खेली 2012 तक, ना कॉन्ट्रैक्ट से सही ना मैच फीस थी, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा था. सिर्फ हमें इंटरनेशनल टूर पे जो डेली अलाउंस है वो मिलती थी, ना प्राइज मनी था. और जब प्राइज मनी भी था, जो फाइनल में हम पहुंचे नहीं कभी, ठीक है ना. डोंट टेल मी प्राइज मनी पीसीबी के पास जाता था. नहीं प्राइज मनी नहीं आईसीसी का टोटल. हम फाइनल में तो कहाँ पहुंचे. अच्छा ठीक. और डोमेस्टिक क्रिकेट में उस वक्त पैसा नहीं था. विमेंस क्रिकेट में अगेन बिकॉज ग्रोइंग ईयर्स राइट, तो उस वक्त वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं आए थे विमेंस क्रिकेट में. तो देयरफॉर इट वाज जस्ट जुनून ऑफ प्लेइंग. बट साथ साथ डेंटिस्ट्री, तो जब क्रिकेट का कैंप खत्म होता था और वहां जाओ तो वहां प्रोफेसर की बातें सुनो, क्योंकि अगर एक भी जवाब नहीं आया तो अब मुमताज और अजमत की बेटी हो तो पैदाइशी आनी चाहिए डेंटिस्ट्री. फिर खेल कूद करती हो, चिप खाएं, फिर खेल कूद करती रहती है सारा दिन. तो क्या हुआ, क्रिकेट खेलिए, ठीक है. तो so it was just like you know like कि यहाँ भी वो सोचते होंगे आपने तो अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं की, तो हम क्यों, why should we cut you any slack. लिटरली कह रही हूँ, खेल कूद कर रही है ना, क्योंकि उस वक्त तो भाई हम लोग वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, ब्लेजर पहन के, पाकिस्तान का पीसीबी का लोगो लगा हुआ है, सितारा लगा हुआ है, साथ वाले पैसेंजर्स कह रहे हैं अच्छा कौन सी टीम से आप लोग खेलते हैं, स्कूल की टीम है. अच्छा अरे कराची की टीम है, अरे आंटी अंकल जी पाकिस्तान की. That would never happen today. बट पाकिस्तान में कहाँ की टीम है आज? बिस्मा या जवेरिया या फातिमा सना जैकेट पहने लोग, people will recognize them. Those are the role models, and that is why it is such an immense sense of pride and feeling attached to that journey कि कहीं ना कहीं अब वो role models खड़े हैं कि every young girl now wants to be a Fatima Sana, which is amazing. Absolutely. अच्छा वैसे in today's according to today's सारा eligibility criteria, what exactly are the steps that a completely novice person has to take to, who is interested in cricket and has some reasonable skill as well? What steps do they have to take to get selected for the team? Even abhi bhi, from a structure point of view, we still are far behind the 8 ball in terms of structure. हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज में विमेंस क्रिकेट नहीं होती. फिलहाल तो लड़कों की क्रिकेट भी बहुत मुश्किल से हो रही है, ठीक है ना. क्लब्स
बहुत ज़्यादा लिमिटेड रह गए हैं. तो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और गुंजाइश भी है और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है. जो फैक्ट है क्या वो है है. स्ट्रक्चर अभी? फिलहाल स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है कि सिर्फ पीसीबी के जो सेंटर्स हैं जो 6 और 8 शहरों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर जब कैंप्स अनाउंस होते हैं तो लड़कियाँ वहाँ जाके खेल सकती हैं. वो कम क्लब्स, कराची में भी क्लब्स हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी हैं, कुछ गर्ल्स कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जहाँ पर क्रिकेट होती है. सो इट्स ऑल वेरी डिटैच्ड. इफ इट ऑल कम्स टुगेदर Sporadic है और बहुत. स्पोरैडिक है और भी अगर इसको फॉर्मली स्ट्रक्चर किया जाए तो बहुत ज़्यादा तेजी से आपकी विमेंस क्रिकेट ग्रो करेगी. तो अच्छा, आपने कभी प्लान नहीं किया कि आप पीसीबी के इस विंग की मैनेजरियल साइड पे जाएं? मैंने जब 2 साल वो just about 2 years when I was a chair Chief of selectors selector, for yeah. the women's side, I was also helping the PCB in terms of as an honorary head of Forming women's cricket a- for yeah. trying to do as much as possible एक because फ्रेमवर्क बन रहा like था. I'm from the inside, right? So I know exactly किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन बिल्कुल. चीज़ों की मुश्किलात होती हैं, क्या चीज़ें genuinely लगती हैं, कौन सी जायज़ जो डिमांड्स हैं वो हैं, because you need all of those. So trying to put structures together, trying to put sort of pathways together, under 19s के tours हों, Pakistan A teams के tours हों. So वो चीज़ें we put into pipeline, which have now obviously formulated into much better structures also. सही. तो उस तरह से अब अंडर 19 के भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बिकॉज आईसीसी का अंडर 19 का वर्ल्ड कप होता है, सो अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं. तो जनरली एंड बिकॉज नाउ यू हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी गर्ल्स हु हैव नाउ डन थिंग्स एंड आर ऑन टीवी and are making good money and are carrying Pakistan's flag high, people want to be those people. So now you have genuine physical look and feel role models आपके सामने जो वो आप तो अब जो है वो नेक्स्ट जनरेशन उस तरह से इंस्पायर हुई. सो collectively I think Yeah. the education system, the PCB and the corporate sector, I think collectively need to put it together because schools और colleges में जब तक खेल कूद सही से नहीं होगा, यार हर स्कूल और कॉलेज तो बिल्डिंग में बन जाता है, गार्डन तो होता नहीं है, भागने की जगह तो होती नहीं है. स्पोर्ट्स डे तो कुछ भी नहीं, बेचारे गरीबों ने पैडल खेलना शुरू तो किया इधर बट उधर नहीं, जाके. स्पोर्ट्स डे भी आपका बाहर हो रहा है, चलो ठीक है मैंने मान लिया स्पोर्ट्स होता है, बट भागने की जगह नहीं है ना स्कूलों में. Yeah. ठीक है ना, तो इसीलिए तो स्पोर्ट्स आपका आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो रहा है. एक क्रिकेट ही रह गया फिलहाल. Yeah. ठीक है ना. अच्छा, सो इस कॉन्वर्जेशन से मुझे एक अंदाज़ा ये भी हो रहा है कि एक प्लेयर को टू बी एबल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल वो सिस्टम पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं ऑब्वियसली. और उस सिस्टम को चलाने के लिए यू नीड अ मैनेजरियल साइड. सो in your opinion, sports management as a career, especially in Pakistan, what scope do you think that has Massive. with respect to cricket? at least? Massive. Anybody who understands that science and knows how to, देखो ऑर्गेनाइजेशन चलाना एडमिन का काम है, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर सकता. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन चलानी है ना आपने, उसके लिए आपको प्रॉपर वो लोग चाहिए जो उनको वो काम करना आता हो. सो हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. अब उस कोच का फिर काम है क्रिकेटिंग कोचिंग करना, बट उस कोच के क्रेडेंशियल्स को जस्टिफाई करना या फाइनेंशियल साइड लाना या स्पॉन्सर्स को लेकर आना या वेन्यूज की प्रोक्योरमेंट करना या कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदनी है, क्या वो एवरी लाइक आई एम सेइंग एवरीबडी हैज़ अ profession and that profession has a spot where you can be hired. Absolutely. So hiring those right people for the right job वाली बात है. तो I think बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज अभी जिस तरह विमेंस क्रिकेट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं पीसी में, पिछले एक आध 10 साल कह लें आप, 6-8-10 साल से प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं. दैट द हेड ऑफ विमेंस क्रिकेट है, प्रॉपर विमेंस क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी होती है, अलग से कोचेज होते हैं, डोमेस्टिक के अलग कोचेज होते हैं, डोमेस्टिक के अलग टूर्नामेंट्स होते हैं. बट आई गेस द मोर प्रोफेशनल्स वी हैव द बेटर द आउटपुट विल बी. राइट, एंड दैट्स ऑल्सो अगेन मैं और आप वो सोचेंगे करने का, बाय एंड लार्ज द पॉपुलेशन विल ओनली थिंक ऑफ डूइंग समथिंग इफ समवनस डन इट बिफोर. जनरली एज अ ह्यूमन रेस बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल ही, तभी तो सेलेक्टेड लोग ऐसे निकलते हैं ना जिन्होंने कोई कारनामा किया हो. अदरवाइज वी आर ऑल ट्रेंड फॉलोअर्स, नोबडी इज अ ट्रेंड सेटर पर से. एग्जैक्टली. और इसका एक रीजन ये भी है ना कि एक तो बिकॉज एवरीबडी ओनली वांट्स एक्सेलेंस एट द एंड, जो वो इवेंचुअल सक्सेस देख रहे होते हैं ना, सबको वो चाहिए होती है. तो फिर उसका एक तरीका गेन करने का यही होता है कि अच्छा दूसरे को सक्सेस कैसे मिली थी, इस बात वजह से मिली थी, आई ट्राई टू गो ओवर देयर. बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू मेंशन्ड दिस. वी हैड अ डिस्कशन अबाउट हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर, बिकॉज और कैसे ही कोई प्लेयर अपनी मुकम्मल जो है वो स्किल सेट तक पहुंचेगा इफ दे आर नॉट हेल्प्ड एंड बैक्ड बाय द सिस्टम, एंड इफ द सिस्टम इज नॉट बीइंग टेकिंग केयर ऑफ पीपल who literally got educated to take care of the system. Acha, tell me another thing. What do you think is the place of healthcare professionals in sports management? Massive. Tell me even from a dental point of view. Okay, how come? Why not educate
फॉरेन से पहले तो खैर आवाम को भी एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है. हम जब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते जब तक दांत में दर्द नहीं होता. जी जी बिल्कुल. और जब दांत में दर्द होता है जब तक पानी जो है सर के ऊपर से गुजर चुका है. बिल्कुल. ठीक है ना. फॉर दैट मैटर वी डोंट नो हाउ टू ब्रश आवर टीथ. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सारी जिंदगी हम ई और ये यू डोंट ब्रश योर टीथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. यू ब्रश योर टीथ इन अ राउंड सर्कुलर मोशन. दैट इज व्हाई ऑल इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस हैव अ राउंड हेड एंड गो राउंड एंड राउंड. ठीक है ना. तो मसला ये है एजुकेशन का. Lack of awareness and lack of education. So from a general health point of view, I think all sports professionals from a health point of view should be educated from basic health, from your routine blood work, from your routine medical checkups to dental to whatever it might be. Then physio aa jati hai, muscle care management kaise karni hai, sports injuries ki education, sports injuries ki management, matlab मालिशिया लगा हुआ है कि भाई ये कर दो सीधा हो जाएगा. तो those things also have a massive scope. स्पोर्ट्स हेल्थ साइंसेज में इतना स्कोप है और इतनी ज़रूरत है अच्छे लोगों की. तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ जिस तरह से आपको ग्रूमिंग करनी है कि उठना बैठना पढ़ना लिखना, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, जो खाने की टेबल पे जो 6000 कटलरी पड़ी होती है उसकी तरतीब क्या है, किसी से मिलना किस तरह से है, बात किस तरह, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. राइट. सो फॉर आई फील एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसूलन तो ये घर और स्कूल से आते हैं, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी आई थिंक जिम्मेदारी है. और प्लेयर्स हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट इवन फॉर द बोर्ड. सारे आपके प्लेयर्स प्रोफेशनल. सो ये चीज़ बोर्ड के अंदर है. सो ऑल मेडिकल इज कवर्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. If you are a contracted player by the Pakistan Cricket Board, the Pakistan Cricket Board takes care of you. Right. But does the board also have selected agencies or hospitals or... Yeah. So there's a complete medical panel, right, which will have head doctors, consultants, physiotherapists, and designated outside specialists in various hospitals who will take care of it. And if required, they even send their players internationally for surgeries, etc. Do you also have a healthcare professional during matches on the field? Yeah, 100%. You have a doctor and you have a physiotherapist. Right. Yeah. Two most important people, obviously. Okay, so coming back to dentistry a little bit. So Dr. Arooj, आपने जब I want to understand कि आपने पढ़ाई तो बता दी कि it was going hand in hand, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही थी, पास तो होना ही था, डिग्री तो चाहिए ही थी. And I'm sure you must have खेल-कूद से तो नहीं काम चलने वाला था भाई. नहीं, this is what I want to understand. This is what I want to understand कि after you graduated and you were a licensed professional, then did you also take your practice and cricket hand in hand, या फिर आपने practice नहीं की और सिर्फ cricket खेला? नहीं देखो, उस वक्त प्रॉबली कह सकते हैं कि आसान इसलिए था, आसान तो नहीं था, बट आज के आसान तो कहीं से भी नहीं था. मुझे पता है कि कितना मुश्किल था, बट मे बी बिकॉज उस वक्त इतनी विमेंस क्रिकेट नहीं थी, which maybe gave me a little bit of time also to study at the same time. अच्छा ठीक है. I'm just justifying it कि आज की लड़कियों के लिए क्यों ज़्यादा मुश्किल है, कि probably क्रिकेट अब ज़्यादा हो गई है. टर्न अराउंड टाइम के रिक्वायरमेंट इन द गेम टाइम वाइज बहुत ज़्यादा है. तो उस वक्त ये था कि क्रिकेट और साथ साथ लेके चलना है. प्लस क्रिकेट वाज स्टिल अ वेरी एमेच्योर स्पोर्ट. नोबडी न्यू कि विमेंस क्रिकेट का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, कि क्या ये कभी सेमी प्रोफेशनल भी बनेगी कि नहीं, कभी मेरे लाइफ टाइम में बनेगी कि नहीं, मतलब मेरे प्लेइंग लाइफ टाइम में बनेगी कि नहीं बनेगी. डेंटिस्ट्री मतलब इवेंचुअली प्रोफेशनल भी तो बनना है. इवेंचुअली द कमबैक विल बी डेंटिस्ट्री. सो when I graduated, even while I was playing, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुई थी तब तक पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पास तो होना था. उसकी भी कहानी है. और ग्रेजुएशन के बाद ये था कि होल हार्टेडली इवन वाइल डेंटिस्ट्री द एंटायर फोकस वाज स्टिल ऑन क्रिकेट. अच्छा, हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि इवन वाइल योर फोकस वाज स्टिल ऑन क्रिकेट, सो यू नेवर रियली स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग. नाइदर कॉलेज तो जाना था ना. नहीं, I'm talking about after graduation. No, so again, the advantage that was कि mom and dad had a private practice. सही. नौकरी पे रख लिया अम्मा अब्बा ने, अभी तक रखा हुआ है, ठीक है ना, निकाला नहीं है. तो mom and dad had a private practice, so that's where I had that license and liberty to play the sport for as long as I wanted. तो जब भी क्रिकेट नहीं होती थी मैं क्लिनिक चली जाती थी. Achha, I have another question. So you did your master's in restorative dentistry from University of Sheffield too, which is a very prestigious university, and I'm sure that restorative dentistry though is very, it's a very hard field to get into. So what was your goal with that master's? So I always wanted to be a dentist who practices. I'd never wanted to teach. I didn't want to go into research, क्योंकि मुझसे ये किताबी बातें नहीं होती, ना मुझसे पढ़ाया जाता. मेरे पास पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक चीज़ मुझे समझ आ गई और सामने वाले को क्यों नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आता है कैसे. तभी मैंने आज तक प्रॉब्ली कोचिंग भी नहीं की है, ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक चीज़ समझ आ गई और उसको समझ नहीं आ रही तो वो सो बेसिकली आई कांट टीच, राइट. सो फॉर मी डेंटिस्ट्री वॉज ऑलवेज very very practical. So I always wanted to do a master's course which was hands on, which was live,
like results reaping in terms of कि patient पे काम करना है, तो उस तरह से तो मैंने बहुत research की कि मुझे कहाँ पर जो है hands on course मिलेगा which is non research based, like in the sense कि it's not all theory and no practical. So मुझे University of Sheffield में मिला, and I think one of the best decisions of my life. Like I absolutely loved the place. Of I course. loved the university, and it was probably the two most amazing years of my life. From एक तो exposure कि Of आप course. कहीं भी घर से बाहर जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो XYZ दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ की learnings, you meet people from again different walks of life. आपके प्रोफेसर से आप मिलते हो, फिर आप एक तो फिर जिस मुल्क से आप आए हो आपको कदर भी तो है ना कि यार मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, मुझे वो भी तो ख्याल रखना है. जनरली पाकिस्तान का इमेज जहाँ जहाँ आप बेहतर कर सको एज अ स्टूडेंट, फिर जो दोस्त बन जाते हैं, फिर जो एंड द प्रोग्राम वाज I'm sure, fantastic. yeah, the education It was itself. literally what I wanted. Plus, then I played cricket in England for 2 years. Okay. And I Of also, course you did. I met the right people. I got in touch with the university team. So I played for the Sheffield United boys team also, men's team also, and I played for the University of Sheffield girls team also. I love how you're making your place तो everywhere. तो वो बड़ा मजा आया था क्योंकि वहाँ पर इंडोर क्रिकेट होती थी. सही. तो पहली दफा जो है हमने शेफील्ड हैलम जो हमारी राइवल यूनिवर्सिटी थी उनको इंडोर क्रिकेट में हराया था. बड़ा मजा आया था, फर्स्ट टाइम एवर. सो अभी जब मैं रिसेंटली वापस भी गई थी, वी मेट ऑल दोज people जो obviously कहीं कहीं से आए हुए हैं, कभी किसी से, बहुत मजा आया था. so that so but from a research, जो आपका सवाल था कि यूनिवर्सिटी का point of view, like I went a lot of research because I wanted, not because कि मुझे मास्टर्स करना है, but उस मास्टर्स का कोई मकसद होना चाहिए कि I can come back, because at that point cricket was maybe not कहाँ तक चलेगी नहीं चलेगी, again like I said, because it's still amateur sport. सही. Also restorative dentistry is such a crucial part of everyday dentistry. आपको general practice में General practice ही है ना पूरी. बिल्कुल, definitely. तो फिर I like how you thought at that time कि मुझे अपनी skill set advance करनी है और why not choose the best university. अच्छा, उसमें दूसरा मुझसे सर्जरी वर्जरी नहीं होती, मतलब वो oral surgery doesn't sort of inspire me as much. Right. Orthodontics, although mom is an orthodontist. I mean restorative dentistry is the bread and butter of because dentists. it encompasses, अब खैर जाके बहुत ज़्यादा और sort of कह सकते हैं आप उसकी वो diversifications हो गई हैं specialist fields में, but by and large तो dentistry covers everything, right? Like the pain, the beauty, the smile, all of it. So but orthodontics मुझसे नहीं होती थी. Okay, ortho तो खैर as a specialty altogether. ठीक है ना, तो और सर्जरी नहीं होती, तो बंद रहे तो फिर रेस्टो, प्रोस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स यही रह गया ना. अच्छा, वैसे आपको ऐसा फील हुआ जब आपने फुल टाइम लाइक डेंटल प्रैक्टिस ही अपनी रखी, बिकॉज आप रिटायर हो गई थी क्रिकेट से फ्रॉम 2010, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कि योर पेशेंट्स वर मोर लाइक दे वर मोर इंक्लाइंड टू कम टुवर्ड्स यू एज अपोज्ड टू समबडी एल्स? बिकॉज कोई नहीं जानता था. Really? Because like I'm telling you ना, there is maybe 2 matches की footage up until the time that I was playing. Otherwise जो हमारा जो एनालिस्ट था, वो जो कैमरा लगाता था उस जमाने में, वो हैंड हेल्ड कैमरा नहीं, जिसकी छोटी सी स्क्रीन ऐसे करके खुलती थी, जूम भी पता नहीं कहाँ तक, आई थिंक 2x भी जूम नहीं होता था, बट वो जो पवेलियन पे कैमरा लगता था 1-way रिकॉर्डिंग के लिए, वो फुटेजेस मौजूद हैं. Because again, I played at a time where women's cricket was still making its way. Right. It wasn't televised, it wasn't covered, so nobody knew. Cricketing fraternity में अगर कोई जानता था तो जानता था, otherwise nobody knew who I was. Right. And okay. and that, to me, that I don't mind that at all because that was the time. I played in the time जब social media था ही नहीं. अब आपको तो मतलब कहीं दुनिया के कोने में कुछ हो जाए आपको पता चल जाता है. Facebook भी नहीं था उस वक्त. अच्छा, तो दैट्स सो सैड बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि पेशेंट्स आपके पास आते ही अब आते हैं ना. अच्छा, अब आते हैं ना, जब कमेंट्री में आवाज आ जाती है, अब आ जाते हैं. अच्छा, वैसे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी एट द मोमेंट हाउ मेनी रोल्स डू यू हैव in like as a commentator या फिर so you had a show of your own a while back as well? So I did quite a few things. So I was obviously the selection committee chair at the PCB, ran the role of honorary head of women's cricket for a bit. Right now how many positions? I'm only a freelance international commentator right now. Acha, okay, that's it. Sahi hai. Barring my job as at my mom and dad's practice as a dentist, and being a wife and a mom, those are my roles at the moment. Which are pretty intense in and of themselves. Yeah. Why did you retire so early though? 2010 में? Same reason, because again I didn't know women's cricket कब तक चलेगी, कब तक आप वो
from playing point of view, I had many years left in me. Like I could have played Exactly. for the long 2006 में तो आप कैप्टन बनी for थी. for a very long time I could have played. But उस वक्त ये था कि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था. Again because of the unknown के. अच्छा आपने मास्टर्स उसके बाद किया था. So 2010 में मैंने मास्टर्स कर लिया था ना. Oh, So I okay, retired okay. in July of 2010 and my master's started on the 7th of September in 2010. तो but ये कि उस वक्त ये था कि I didn't know how, क्योंकि 2009 का वर्ल्ड कप खेला था. उसकी भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है. फिर 2010 का 9 और 10 के T20 वर्ल्ड कप्स खेले दोनों. तो 3 वर्ल्ड कप्स भी खेल लिए थे. उस वक्त भी कोई ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आई नहीं थी विमेंस क्रिकेट को लेके. फिर मेरा एडमिशन हो गया. सो आई वाज वंडरिंग अगर नहीं होगा तो एक साल और खेल लेंगे डिपेंडिंग ऑन. फिर मेरा वहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन हो गया. उसके बाद भी आई वाज लाइक ठीक है मास्टर्स कर आऊंगे देन वी स्टिल सी वेयर विमेंस क्रिकेट इज. सही. बट देन इट स्टिल हैडंट रियली जंप्ड ऑफ इन द पॉइंट कि यार मतलब एक प्रोफेशनल की तरफ जा रहा था. तो फिर देन आई वाज लाइक ठीक है. सो आई हैव जीरो रिग्रेट्स. Okay. बट अभी भी मैं कह रही हूँ आई कुड स्टिल प्ले बट आई हैव जीरो रिग्रेट्स. आई जस्ट फेल दैट द टाइम दैट आई प्लेड आई मेड द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज. आई थिंक आई गेव माई 100% और आई मेड द डिसीजन कि अब मुझे उस तरफ जाना है where I can make a profession. Right. So I don't have any regrets. So are you currently involved with PCB as a, because you were an analyst, one of the analysts. So all the work that I do is freelance. So it depends कि कौन सी सीरीज आ रही है. सही. जैसे अभी HBL PSL का ऑक्शन हुआ था तो आपको PCB जो है वो कांटेक्ट करता है कि ऑक्शन में आपका ये रोल है, would you like to do it? So it's like that कि अभी कमेंट्री अभी PSL भी शुरू हो जाएगा तो उसमें भी आ जाएगा कि ये कमेंट्री पैनल है, ये मैचेस. इट इज ऑल फ्रीलांस. यू द कमेंटेटर्स नॉट हायर्ड बाय द PCB. ठीक है. ओके. अच्छा तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपना मास्टर्स करके आई थी एंड ऑब्वियसली नाउ योर स्किल सेट वाज बेटर देन इट वाज बिफोर. तो फिर was that the point when you decided कि okay now I want to give more time to dentistry because well you also invested your time and money into generating a skill, and is that when you kind of got more inclined towards giving time to dentistry? So when I came back from my masters I did decide that you know like मैंने अपनी रिटायरमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की थी मास्टर्स पे जाने से पहले. I took a break but वापस आने के बाद I was just like you know I think बिकॉज मैंने इंग्लैंड में 2 साल रहने के लिए आई प्लेड फॉर यॉर्कशायर ऑल्सो. मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला और मैंने ECB का लेवल 1 और लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी कर लिया था. सो मेरा वो जो क्रिकेट का जो जुनून था ना वो जो क्रिकेट का जो जुनून था ना वो वहाँ भी 2 साल चलता रहा कि थर्सडेज और संडेज हम क्रिकेट खेलते थे. कहीं भी जाना पड़े, कोई भी टीम के साथ खेलना पड़े, 2 दिन यूनिवर्सिटी के नेट्स भी होते थे. तो फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम. मतलब यू नो के प्लस मुझे नहीं पता था बट वहाँ पर एज पाकिस्तान टीम की कप्तान है तो मतलब आपको पीपल फाउंड आउट वेरी क्विकली दैट आई वाज इन इंग्लैंड. Right. What do you think your goals are at the moment? Like, where do you see yourself in terms of your practice or anything else in 5 years from now, let's say? Yeah, from a dentistry point of view, I just feel that, again, like I said, that feeling of just turning someone's pain into a smile, no matter what financial remuneration that turns into, whether it makes me one of the biggest names in the dental field, I don't honestly mind. Because I have transitioned from a restorative to also a pediatric dentist, which is the most thankless job on the planet. Yeah. Because those kids don't want to sit and they don't care and they will bite your finger. Oh, so you only look at peds patients? No, so I do a lot of restorative work, but because बच्चों के दांतों को कोई और नहीं देखता क्योंकि बाकी लोगों में patience generally नहीं होता है क्योंकि वो नहीं बैठते हैं तो मैं देखती हूँ and oh my god. So for me dentistry is alhamdulillah I feel I'm a good dentist in terms of understanding the mechanical and the physics behind it. Plus मेरे अंदर patients को देखने का patience, बच्चों को देखने का patience है. Generally you feel I honestly feel the patient is a human and not just a number. ये बहुत cliched बात लगती है but ये बहुत सच बात है क्योंकि जब अगर आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ अगर उसको आपका नाम नहीं याद या उसको आपकी पुरानी कॉन्वर्सेशन नहीं याद या कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं याद तो वो जब ह्यूमन इंटरेक्शन का कनेक्ट नहीं बनता ना तो वो नहीं बनता. सो यू नीड टू नो योर पेशेंट. तो मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं ना या इवन एडल्ट्स सबके पास मेरा नंबर होता है. ऑल माई पेशेंट्स हैव माई नंबर. इज दैट अ गुड आइडिया? 100%. यस, उसमें बहुत ज़्यादा अनोइंग पेशेंट्स भी होते हैं. करते होंगे लोग इस चीज़ को. करते हैं, ओवरडू कर देते हैं बट
that's for me to set my boundary ना. I don't answer my phone and और अगर कोई किसी को बहुत dental emergency तो आप मुझे मैसेज कर दोगे, right. ठीक है. बट एवरीबडी, अब उस दिन एक मेरी पेशेंट है, डॉक्टर जो आज मैंने रोजा रखा है बट आई एम गोना हैव 9 marshmallows. Can I have 9 marshmallows? Yes, you can have 9 marshmallows. Yes, totally. Why can't the With patient that mindset, why can't the patient maybe have my just number? do- Why can't the patient have my number? I think one reason why I would, as a dentist, not give my number to a patient is एक तो ये कि I would think कि the patient would now think there is a constant communication going on That's with the for dentist. you to put in control. Yeah, but you're right about that. Acha, Dr. Ruj, we have had a wonderful conversation, but I want to end on 2 things. पहली चीज़ ये कि बिकॉज आपने बिल्कुल अभी बात कर लिया कि आप पीडियाट्रिक पेशेंट्स को वॉलंटरली जो है और बहुत अच्छा भी संभालती हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट गो. मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट जो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स ठीक से आपसे, और वो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीड्स पेशेंट्स इज नहीं करवाना काम, मुंह उधर कर लेंगे. What do I do about that? मैं क्या ही करूँ आपके लिए जब आप मुंह उधर करके बैठ जाएंगे, मेरे चेयर से फिसल के आप नीचे हो जाएंगे. How do you handle? The only thing that works for me is building a relation with them. It is magic. वो बच्चा जो पहले दिन तोड़ फोड़ चीखम चाखी मुंह नहीं खोलना लाते मारनी है, वो 2 अपॉइंटमेंट बाद मेरी कुर्सी में सो रहा होता है. मैं उसके मुंह में रूट कनाल कर रही हूँ, वो सो रहा है. बट इसके पीछे बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है. बेटा मुंह खोलो, इंजेक्शन लगाऊंगी, दुखेगा नहीं. हेलो, इंजेक्शन लगने वाला है, दुखेगा नहीं, हिलना. What do you get what I'm saying? So the look and feel factor के आपने desensitize किस तरह से करना है visual. So all our units have a screen right on top. क्योंकि जब आप डेंटिस्ट्री में लेते हो तो आप यूँ लेते हो, तो सारे यूनिट्स में हमारे ऊपर स्क्रीन है, कार्टून लगा हुआ है. आप आवाज़ या तो फुल कर दो या हेडफोन्स पहना दो. तो आपने डिसेंसिटाइज कर दिया विजुअल एंड हियरिंग. हर मशीन जो बात है, ठीक है ना, सही है. प्लस यू हैव टू देन बी सच अ गुड टेक्नीशियन फ्रॉम अ हाथ का काम पॉइंट ऑफ व्यू के दुखना भी फिर नहीं चाहिए. सही बात है. एंड देयर इज द डेंटिस्ट्री हैज कम अ लॉन्ग वे के दुखना भी नहीं चाहिए अनलेस कोई बहुत अक्यूट डेंटल इन्फेक्शन और ऐसा केस है जिसमें आपको पेन मैनेजमेंट करनी है, बट फिर दुखना भी नहीं चाहिए. आपकी सारी बातें सही हैं, and I'm very glad that as an experience. ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. और कभी कभार obviously मैं तो जब आपने बोला तो I wasn't even planning on going over there, but I was like अब तो मुझे पूछना पड़ेगा how is she handling kids भाई. No, but अच्छा, वैसे ये सारे काम बच्चे नहीं बड़े भी करते हैं, so हाँ. Yeah, okay, but उनको समझाना आसान होता है. but कम से कम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अल्फाज उनके जहन में जाके देयर फॉर्मिंग अ कोहेरेंट थॉट, और वो एक कोहेरेंट थॉट ही आपको सुना रहे हैं. लेकिन विद अ किड मुझे बुरा लग रहा होता है कि मैं 6 साल के बच्चे को समझा रही हूँ, बिकॉज ही इज लाइक आई डोंट केयर अबाउट यू. 6 साल तो तुमने ज़्यादा बात कर दी. मेरे माई यंगेस्ट पेशेंट इज 9 months old. Oh, what are you doing? Like what's the case? माँ बाप को झाड़. यार देखो रोजी देने वाला अल्लाह है, ठीक है ना. मेरी मॉरल एंड प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उस पेशेंट को और उसके माँ बाप को एजुकेट करना. बट डांट भी तो पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो मीठा नहीं लाया ना घर पे. फॉर दैट मैटर वो 6 साल का भी तो बच्चा, 9 month old वो is having sweets. 9 month तो चलो दूध का कसूर हो गया ना, बट उसमें भी एजुकेट करना जरूरी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. और दांत अगर है तो उसमें कीड़ा लगेगा, चाहे वो बच्चा 6 महीने का या वो 60 साल का है, और उसको ब्रश करना भी लाजमी है. तो जो डेंटल एजुकेशन है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना. बट ये कि वो चॉकलेट दूध पी रहा है रात को और वो जाके कैंडीज खा ली उसने सारी, भाई तो वो इनेबलर तो आप थे ना, तो डांट तो आपको पड़ेगी. पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेबी बॉटल डिके और थिंग्स लाइक दैट. तो फॉर अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, एज यू मेंशन्ड कि योर यंगेस्ट पेशेंट इज एज यंग एज 9 months old, for a newborn or even a toddler, what is the best advice a mom can have in terms of taking care of their kids' oral health? Biggest misconception is that breast milk is okay. That nursing bottle syndrome हम represent करते हैं bottle fed बच्चों से. It is not the bottle, it is the milk. Explain that more. So basically आप nursing bottle syndrome होता क्योंकि आप नाइट टाइम फीडिंग कर रहे हो या कॉन्स्टेंटली सारा वक्त बच्चा दूध पी रहा है, खास तौर पे रात को कॉन्स्टेंट इनटेक ऑफ मिल्क है. अब बच्चा उठ के ना तो पानी पी रहा है ना दांत ब्रश कर रहा है. मिल्क, वेदर इट इज ब्रेस्ट मिल्क, बॉटल मिल्क, गाय का दूध या कहीं से भी लाया दूध, मिल्क इज स्टिकी एंड जनरली स्वीट. ऑल फॉर्म्स ऑफ मिल्क, राइट. तो जब एक मीठी चिपकने वाली चीज वो 2 घंटे दूध पिया, नो मैटर व्हाट वे इट इज फेड इन, राइट, और व्हाट मिल्क इट इज,
वो दांत पे एक लेयर चिपकी रह गई तो दांत ने खराब होना है. सही. तो ठीक है. सो ये समझाना जरूरी बहुत है कि ये तो बॉटल तो लेता ही नहीं. इट्स नॉट द बॉटल. इट इज़ 2 घंटे बाद दूध पिलाया, फिर उठ के रोया, फिर आपने 2 घंटे बाद दूध पिला दिया. तो जो सारी रात जो बच्चा 10 या 12 घंटे, छोटा बच्चा तो सोता है ना, 10-12 घंटे तो सोता है, तो उसमें फ्रॉम पॉइंट 8 to 12 आवर्स वो दूध का असर तो रहा मुंह में. तो कैविटीज नहीं होंगी क्या? अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बल्क फीड करते ही हैं, तो इसका सोल्यूशन ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कि आप फीड कम कराएं. ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप मुंह साफ कॉन्स्टेंटली करवाते रहें. मेरा देसी टोटका है इसके अंदर Okay, कि sorry, go 2 चीज़ें आप कर सकते हैं कि फॉर दोज हु आर बॉटल फेड आप रात को सब्स्टिट्यूट करें पानी की बोतल से. बिकॉज एक पॉइंट पर आके बच्चा जो है ना उसकी वो हैबिट होती है. इट्स नॉट नेसेसरी द कंटेंट ऑफ मिल्क. या आप जो है उस बॉटल मिल्क की बॉटल को आखिरी कुछ मिनटों में पानी की बॉटल से रिप्लेस कर दें ताकि वॉश आउट इफेक्ट हो जाए मिल्क का. ठीक है. क्योंकि आप बच्चे को उठा के ना बाथरूम लेके जाएंगे ना आपकी नींद खराब होगी. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू से कि नहीं इसके दांत साफ करो. तो सब्स्टिट्यूट विथ वाटर, ताकि हम क्या करना है मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ मिल्क ना. हम बात करें यहाँ पर 9-10 महीना 12 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा इज पुशिंग इट. उस वक्त 100% दूध इज नॉट, क्योंकि वो और भी चीज़ें खाता है. ठीक है. तो नाइट टाइम फीडिंग उस बच्चे की वैसे भी बंद हो जाती है. मैं लिमिट कर रही हूँ 1.5 साल के बच्चे तक. सही है. ठीक है ना. जहाँ पर आपको ये चीज़ों का प्लस ब्रशिंग तो करनी है इररिस्पेक्टिव. मगर जो दूध का इफेक्ट है वो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पानी पिलाकर. ठीक है. अब या तो आप बॉटल को आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें कि रात को आप फिनिश कर दें पानी की बोतल से. देसी टोटका मैंने जो बनाया, जो मैंने खुद ही ईजाद कर लिया, कि आप अपने बेड साइड पे एक बोल रख लें, उसमें आप कॉटन डाल लें पानी के अंदर. और अम्मा अब्बा दोनों की जिम्मेदारी है. बिकॉज इट्स नॉट बेबी सिटिंग, इट्स पेरेंटिंग. ऑलराइट, फॉर द फादर एंड द मदर. सो कॉटन ले लें गीला, एंड यू कैन मे बी जस्ट वाइप द टीथ एज मच एज यू कैन. अभी हम यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बात करें ना, तो आपने गीला कॉटन लेके पानी का साफ कर दिया, ताकि वो आपने चिकनाहट की लेयर जो दांत को कॉन्स्टेंटली डीमिनरलाइज करी. यही हो रहा है ना दांत में. तो हम अगर ले मैन को बात करें तो दांत को नरम कर रहे हैं ना. जो क्रिस्टल है उसका एलिमेंट उसको खा रहा है, तभी दांत झड़ जाते हैं. जो टिपिकल कि अब इसके दांत झड़ने शुरू हो गए. दांत झड़ने शुरू हो गए हैं. दांत नहीं झड़ने शुरू हुए मैडम, मैजिक हो गया. ठीक है ना. तो वो झड़ने शुरू होने की कहानी 6 महीने साल से शुरू हुई है. सही. और वो हो रही है दूध की वजह से या जनरली मीठे की वजह से, व्हाटएवर. तो आप कॉटन बॉल से लेकर ना जनरली आपको कर दें ताकि वो वॉश आउट हो जाए, और आपने जितना हो सके वाइप कर दिया. आई होप दिस रीचेस टू एज मेनी मदर्स एज पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास भी जब खवातीन आती हैं तो वो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नया होता है. टू लिटिल फॉल्ट ऑफ देयर ओन, लेकिन उनके लिए कॉन्सेप्ट ही नया होता है कि ये तो मेरा बच्चा 8.5 महीने का है, इसको मैं कैसे ब्रश, और देन वी हैव टू लाइक एक्सप्लेन इट टू देम. सो या आई एम वेरी ग्लैड कि वी टच्ड दैट टॉपिक. So the last thing that I want to discuss, and then we will absolutely conclude, is so you as a very young girl knew that you were interested in cricket, and alhamdulillah you had supportive, I'm assuming that you had supportive family around you who did not question your interest in a field that was at that point in time not for women. But as we discussed that it in today's day and age, there are certain families who would behave the same way as your family did, but there are certain families who would then not as well. But what advice would you give to a young girl who is getting interested in sports, not particularly in cricket, but has started to get interested in sports and is contemplating taking a career that's not sports simultaneously? How would you? So just from a support point of view, I think हम जितना भी अपने घर वालों को थैंक करें उतना कम होता है, क्योंकि जनरली आप इट इज़ बट नेचुरल कि वो आपको सपोर्ट करेंगे बाय एंड लार्ज. सो बोथ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई नानी नाना, everybody was extremely supportive. My husband is extremely supportive. Honestly, आज I would not be able to do the things that I do had he not been my other pillar. Simple. That's so cool. ठीक है ना. And him and my daughter Haya have this fantastic relationship, which is just grown naturally and organically, which is really beautiful, and that just allows me to be away from home without feeling guilty, and that is huge. That's right? Incredible. और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई बहनों ने जितनी लड़ाइयाँ मेरे लिए लड़ी हैं, मुझे तो अब पता चलता है जाके कि कौन कौन ख़ानदान में भी और करीबी दोस्तों में भी क्या क्या बोलता था जो मुझ तक कभी बातें आती नहीं थी. So to have that pillar, and one more thing, I'm taking a little bit of your time here, but no, please. One more person I always mention who has a massive role in where I am today is Dr. Bakar Askari. Okay. My dean and professor of Fatma Jinnah Dental College. And मेरा second year का सप्ली का कॉलेज का इम्तिहान था, एनुअल इम्तिहान कॉलेज का, सेकेंड ईयर BDS का.
आई वॉज कैप्टन. हमारा एशिया कप था एंड द एशिया कप की डेट्स और कॉलेज के फाइनल एग्जाम की डेट्स लिटरली वर टुगेदर. एशिया कप और प्रॉफ की डेट्स. यस, Oh ठीक है God. ना. और मैं कप्तान. ठीक है, अब मैं डॉक्टर बाकरस्की के पास गई और मैंने कहा कि सर ये हो गया है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कल अपने अम्मा अब्बा के साथ आना. मैं अम्मा अब्बा के साथ घर पे जाके डिस्कस किया. अम्मा अब्बा ने कहा कि यार ठीक है, अपनी जगह वील गिव यू ऑल द सपोर्ट, बट प्रॉफ का एग्जाम कैसे मिस कर सही सकती हो. बात है. मतलब और प्रॉफ तो दोबारा लेते भी नहीं. ठीक है ना. और ये तो अभी 2005 की बात है. मतलब पहला ही साल है क्रिकेट का. सही. 2006, जस्ट 2006 हुआ तो पहला ही साल है क्रिकेट का. अच्छा, हम डॉक्टर बाकर अस्करी के पास गए अगले दिन. डॉक्टर बाकर अस्करी ने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप इसको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे तो मैं इसको एग्जाम नहीं देने दूंगा. बेहतरीन. मतलब कहाँ ओ जी. जिंदगी में तुमने कभी सोचा होगा कि कोई ये बोल दे. नेवर मैन. मतलब मुझे भी अम्मा अब्बा को तो समझ आई नहीं आई. मुझे जस्ट लाइक what so green flag. so matlab the respect that I have for Dr. Bakar Askari Absolutely. is immense. Not only he understood but he motivated that. और उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों से स्टेप में लड़ाई की to change the dates और make it somehow acceptable. तो डॉक्टर बाकर अस्करी ने कहा आप सप्ली में इम्तिहान दे देना. हाँ. आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा थोड़ी होगा कि आज वो सप्ली के आपको कोई फर्क पड़ेगा और आपके पास लिजिट डॉक्यूमेंट है कि आपने क्यों एग्जाम मिस किया था. सही. खत्म हो गई बात. सही. तो ये तो सपोर्ट वाली बात हो गई. बट द मैसेज फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर यंग गर्ल्स बट एनीबडी हु इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग. मैं हमेशा एक डिज्नी मूवी को कोट करती हूँ. सो मी एंड माई डॉटर एंड बिकॉज ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री आई वॉच ऑल डिज्नी मूवीज क्योंकि आई नीड टू बी अब्रेस्ट विथ व्हाट्स हैपनिंग इन दीज बच्चा का लाइफ ना. तो जो हाँ तो ये एक तो बच्चों से रिलेशन करने के लिए ना, हाँ बच्चों से रिलेशन करने के लिए आपको उनकी जबान और उनके लेवल पे बात करनी है. तो आई नीड टू नो ऑल डिज्नी कैरेक्टर्स, आई नीड टू नो व्हाट गेम्स आर हैपनिंग क्योंकि मुझे उनसे पता होना होता है. तो देयर इज दिस डिज्नी मूवी कॉल्ड सिंग. इट इज अबाउट अ कोआला. Oh yeah. इट इज लाइक ये जो आइडल नहीं होते पाकिस्तान आइडल फलाना फलाना, उस तरह का एक एनिमल वर्ल्ड में प्रोग्राम है. ये कोआला है जिसका डैड जो है उसका एक थिएटर होता है और ये एक शो करता है कि टैलेंट शो. ठीक है ना. तो इसका सारा इसने लोन लिया हुआ होता है. इसने अनाउंस कर दिया कि प्राइज मनी इसके पास है नहीं. गुंडे घुस गए कि इसका एवरीथिंग इज फॉलन अपार्ट. एंड ही सेज व्हेन यू हिट रॉक बॉटम there's only one way left to go and that is up. So for me again cliche terms, sky is the limit and the only barrier in your dream is you. अगर आप अपने दिमाग में खुद ऑब्स्टिकल डाल दोगे ना अपने लिए, then it is impossible. But when you believe that you can, देखो hard work is a part of anything. Obstacles is a part of anything. मुश्किलें हर चीज में आती हैं. Everything at the start is impossible till you turn it into possible, right? Yeah. So for me, the obstacle is you. How do you think about your dream? And when you think about it positively, when you think that you can actually do it, then nothing is impossible. And I have honestly been at points where in my career where I have thought about stuff कि यार ये कैसे होगा, and then only because my thinking was नहीं I can do this, it eventually became a reality. So for me that is, and सब चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, सब चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, but you have to fight your own battle. Absolutely. I think this very well gets proven from all the examples that you gave, especially women's cricket team की founding story अगर आप ना बताती तो उसके पैशन का किसी को आइडिया ही नहीं होता, and that makes total sense. Again, thank you so much for your time, Dr. Urooj. It's always a pleasure having you, and every time that anybody has had a conversation with you, I am sure that they walk out as a very much more informed person as they were previously. So thank you so much for your time. My it was wonderful talking to you, and inshallah looking forward to see you some other time after you have analyzed yet another problem going on with the world of cricket in Pakistan. And I'm sure that all of us collectively get very motivated from female personalities such as yourself, who are not only self-made, they're also extremely self-motivated and are a very true walking example of कि भाई you are the only obstacle in your dream. So again, thank you so much for your time. Pleasure. It's been wonderful. It's been lovely chatting to you. The research was amazing because you know pretty much everything. Borderline creepy. Nah, it was brilliant. No, thank you so much for having me. And yeah, again, I think not just me, even you hold a very responsible position. You're also inspiring a lot of people, as is everybody. I think everybody is important in where they are. I think collectively the end goal should be the respect for this country.
बिल्कुल बेहतरीन और इसी नोट पे वी विल एंड दिस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबडी डॉक्टर उरूज मुमताज is not a new personality to everyone and I'm sure that everybody who would be watching this the goal was for everybody to know something new about her and for everybody to know the story of the team of national women's Pakistan team. Anyway, the point is that Dr. Uruj is always available at most of our social media platforms and is a wonderful mentor as a dentist and even as a cricket analyst. Thank you for your time. This was our time with Dr. Uruj.